I almost done with my workout starting from here today because I again wanted to emphasize on the need for working out before you have important dates in the court. So that gives you an hint today that I have a really important day in the court today where two matters are listed in the Delhi High Court, and it is for quashing of two orders in which relief under section 156(3) of CRPC was granted. Yes, it gives you butterflies in your stomach when you're involved in the matter and when you know the consequences of not securing relief in the matter, but it is what it is. It is a part of the job. It has in fact become a part of our personality. So let's see, let's go to the court. We have our files prepared, judgments, important materials, everything flagged. This is the date when the case has been listed for final disposal. I'll meet you in the Delhi High Court. Here's all the flagged material, and this is our copy. This is not the judge's copy. The copy that we'll be supplying to the judges, we have kept it in a separate file so that can be done there only. We have placed same flags and exactly same kind of highlighting has been done with the same color, exact same color in the judge's copy and our copy, so that when we are in the court, we exactly know what to say, when to say, and which flag to refer when. This is the main file. So it contains the flags, excerpts, etc. from the case that we have to use. हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम तो हमेशा लगता ही है, बट उससे पहले हमको देख लेना चाहिए कि क्या क्या सेक्शंस आपके मैटर में अप्लाई हो रहे हैं. इस मैटर में क्योंकि सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 की बात थी, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आपको बैरक में दिख रहा है 156(3). ये वो पावर है जो मैजिस्ट्रेट के पास है एफआईआर डायरेक्ट करवाने के लिए अगर पुलिस ऑफिसर्स ने मना कर दिया है किसी कॉग्निजेबल केस में एफआईआर करने के लिए. मैंने इन्फॉर्मेशन जाके दी पुलिस स्टेशन में, थाने में, और उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया कि नहीं, आपकी इस बात पे एफआईआर नहीं बनती. और जब मैं अपने एडवोकेट के पास गई कि मेरी एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की गई, एडवोकेट ने मुझे बताया कि अरे आपके केस में तो एफआईआर होनी चाहिए थी, इट वाज अ कॉग्निजेबल केस, तो आप 156(3) में जा सकते हो इस पावर को यूटिलाइज करवाने के लिए. उस टाइम पे एफआईआर दर्ज हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, लेकिन आज जो इशू है, आज तुम बोल दो कि हाँ भाई उस टाइम पे तो ऑर्डर सही पास करा था उन्होंने, लेकिन आज उसको ऑर्डर को दोबारा से रिन्यू कराना है, सफल ही तो है, वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है ना. एट माई बैक यू आर सीइंग अ स्क्रीन. यहाँ पर आपको पता लगता रहता है कि कौन से कोर्ट में कौन सा मैटर चल रहा है. इवन इफ यू आर इन द कैंटीन यू गेट टू नो अबाउट द मैटर बीइंग हर्ड. Because it's taking more time than usual, I thought why should we not use this time wisely. For now, let's just stop watching. I told you that I'm going to use this time wisely, and so should you. In the meanwhile, when I complete everything that I had to for that day, you must know about this special offer by Unacademy for judiciary aspirants. अगर आप judiciary aspirant हो तो आज का दिन एक मौका है इस ऑफर को अवेल करने का. सिर्फ आज के लिए ये ऑफर वैलिड है, रात को 12 बजे तक. आपको 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ का फ्री और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे यानी कि 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. दैट मीन्स कि आपको 10% ऑफ वीलॉगिश कोड यूज़ करने के बाद तो मिलता ही था और वो मिलता ही रहेगा, बट उसके साथ साथ आपको फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री आइकॉनिक लाइव सेशंस फॉर एडिशनल 4 months if you purchase the 2-year subscription. It is nothing when compared to the hefty fee the coaching institutions are charging these days. Moreover, you have such batches that will prepare you excellently for the judicial services exam. So I don't think you should wait any further. In fact, you should have a look at the prices that they are offering for the judiciary courses. सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग अगर मैंने कहीं देखी है तो वो यही है. और आजकल जब कोविड पैंडेमिक इतना हो गया है तो हमें ऑनलाइन लॉ स्कूल्स की, ऑनलाइन लॉ लेक्चर्स की इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई है. अगर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना है और सोच लिया है तो अभी स्टार्ट कर दो. देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग इफ़ यू आर अ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th ईयर लॉ स्टूडेंट. ऑल द बेस्ट. अब जब पता लग ही गया था कि इतना टाइम लगने वाला है, वी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द मंथ. और जितने भी मैटर्स थे जिनके हमें लास्ट ऑर्डर्स डाउनलोड करके रखने थे या फिर डायरी में से हमें किसी पेंडिंग मैटर के लिए डिस्कस करना था, वी स्टार्टेड डूइंग दैट. साथ में लीगल नोटिस भी एक पेंडिंग था जो कि करना बहुत ज़रूरी था बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू अ पेंशन मैटर एंड पेंशन वॉज फॉर अ सीनियर सिटीजन जो कि जनरली होती है, इसलिए उसको अर्जेंटली करना
required. It seems like my fear of this matter coming up before the court after lunch break is going to come true. So not only we have finished all other work, completion of court diary, etc., calls that we had, but we have also started drafting a legal notice, which we anyway had to draft. At least we will prepare the structure and everything and all the things that we have researched on, and we can later finalize it during the end of this day. Because of course this matter is also important, but can we really afford to waste 4 hours in just waiting for one matter that's going to come up after lunch? Here in the Delhi High Court parking, because it's already lunchtime and you can see it's all full. It's not like the usual COVID days now, because everybody is preferring to come physically if they can, and if you don't want to come physically, then it has been made clear by the courts by an order of the district and session judge headquarters as well, if you talk about lower courts, that in case any advocate wants to appear virtually and not physically, then he need not give any prior intimation, prior notice that he wishes to do so. In fact, all the courts, all the judges will keep their WebEx Meet links open throughout the day from at least 10 till 4:30 p.m. in the evening. So yes, we can all appear online as well, but appearing physically many a times is necessary. I am here for lunch. I'll just eat my lunch very quickly in the car because there was a matter going on. There were connected matters, और वो सेकेंड मैटर से लेकर 6th मैटर तक इतना देर से चला. It literally took 2 hours. I went into the court to see what is actually happening, and I saw that it was kind of a big shot matter, you can say, and it was on the interpretation of law regarding, and a provision, a law was being interpreted, and that is why it was taking so much time. The honorable judge was seeking assistance of both the advocates appearing from both the sides to know what the actual position of law is, and that is why it took time. But fortunately it is matter number 7 now, and my matters are listed at 16 and 17. So I hope अब जल्दी से आ जाएगा after lunch. All set, let's eat. Welcome to the future. I was editing this video, I saw this clip. इसके बाद क्या होता है, I go to the court, अंदर नंबर आ जाता है कोर्ट में, I start making the arguments. बीच में कहीं से I read the title and मुझ पे ये पॉइंट आउट किया जाता है बाय द ऑनरेबल कोर्ट कि टाइटल में कुछ डिफेक्ट है. उन्होंने बोला कि मेरा पेज नंबर, पर्टिकुलर पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा पेज नंबर 6 और आपका पेज नंबर 6 सेम नहीं है. देयर इज़ सम डिफरेंस. हमने भी नोट किया कि हाँ कुछ तो है, क्योंकि ऑनरेबल जज कुछ और बोल रहे हैं और हम कुछ और ही बोल रहे हैं. वो जो कह रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ गलत मुझे लग रहा था कि ये चीज़ नहीं हो सकती. वो क्या प्रॉब्लम थी, जो पिटिशन फाइल हुई थी वो फाइल हुई थी एज CRL-MC, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन, और ऑनरेबल जज को टाइटल देख के कुछ ऐसा लग रहा था, टाइटल सुन के, कि वो रिट पिटिशन क्रिमिनल होनी चाहिए थी. ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल में है, तो ऑफ कोर्स उसको एज रिट पिटिशन फाइल होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 226 में होती हैं. अब ये जब इरेगुलरिटी सामने आई, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी. पॉइंट इसलिए भी ये था क्योंकि ये जो क्लाइंट हैं, इनके जो पहले वाले एडवोकेट थे, मुझसे बहुत पहले, हम लोगों से बहुत पहले, ही अनफॉर्चुनेटली डाइड ड्यूरिंग द अनफॉर्चुनेट कोविड पीरियड. उन्होंने उस टाइम पे एक एरर उनसे कमिट हो गया होगा और उन्होंने उसको ड्यूली अमेंड भी कर दिया था, उन्होंने ठीक भी कर दिया था. ये चीज़ हमें फाइल इंस्पेक्ट करने के बाद में पता चली. बट जब ये कोर्ट में कुछ रीजंस की वजह से पॉइंट आउट किया गया तो हमें भी समझ नहीं आया, और शायद ऑनरेबल जज को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. उसके बाद आप देखो कि क्या हुआ. I am so annoyed. It feels like I am not in the national capital territory, Delhi, anymore. I felt courts are a place where etiquettes are taken care of. That courts are a place where etiquettes hold at the state of affairs. This is helpless. I am annoyed because एक मैटर जिसको 2017 में फ़ाइल किया गया था, उसके टाइटल में प्रॉब्लम निकाली गई है अब इन द ईयर 2022
जब एडवोकेट हैज़ चेंज, उन्होंने बोला कि कौन एडवोकेट थे, मतलब एडवोकेट के बाद बोला कि इवन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम वी विल फाइल एन अमेंडमेंट, वी आर नॉट saying that it's not our mistake, even if it's, I understand that even if it's the mistake of the council that was there prior to us, we will have to accept that mistake and we will have to correct that for the sake of our client. And we just made the same submission before the court, but he kept on saying I'm sorry, but if this is the way it's going to remain, then bar bench relationship can never be at peace. ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत अच्छे जजेस नहीं देखे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी देखे, जहाँ पर मैंने कई बार तो नोटिस भी किया कि अगर हमारी भी कहीं पे गलती होगी, इंसान है, सब लोग इंसान होते हैं, गलती रह जाती है, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती रह जाती है। कई बार तो मुझे भी लगा कि मेरी इतनी बड़ी गलती थी, या किसी क्लाइंट की इतनी बड़ी गलती थी, या किसी प्रायर एडवोकेट की इतनी बड़ी गलती थी कि थोड़ी सी डांट तो पड़नी चाहिए थी। बट इतने अच्छे तरीके से कुछ जजेस आपको बीइंग सीनियर्स टू यू ऑल्सो, इतने अच्छे से वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपको भी बाद में रियलाइज़ होता है कि कितना ज़्यादा आपको अपना रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट रखना चाहिए। बट यहाँ पे ऑल्दो उसी सजेशन के बाद उन्होंने अमेंडमेंट के लिए बोला कि आप दे देना, अमेंड कर देना, बट इतने अननेसेसरी कमेंट्स के बाद नो। डोंट वरी, कितनी अनॉयड लग रही थी ना मैं, कितनी ज़्यादा परेशान। और अभी अगेन फ्यूचर में आ गए हो आप, आई एम एडिटिंग दिस वीडियो, और अब मुझे देख के लग रहा था कि कोई बात नहीं यार, कभी इतनी प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। इसके नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे कैसे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ईजिली मिल गया था। बट हमें किसी भी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सामने जो हो रहा है ओके, टेक इट लाइटली, ठीक है, कोई कैसे भी बोल रहा है कोई बात नहीं, अभी के लिए सुन लो, अभी के लिए अपनी तरफ से जितनी शालीनता से, जितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो कर दो। सोच लो, टाइम ले लो, अपनी गलती मान लो कि हाँ मुझसे गलती हुई होगी, बट प्लीज़ मेक इट क्लियर टू मी कि हुआ क्या है, ताकि आप उसका एटलीस्ट सोल्यूशन तो ढूंढ पाओ बाद में जाके। बाय द वे, आई वॉज़ वेटिंग आउटसाइड दी कटकरुमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर कुछ काम था। वहीं पर मुझे लगा कि कार में बैठे बैठे, बैठने से अच्छा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का मन कर रहा था, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। और वहीं पर एक और चीज़ हुई, व्हेन आई वाज इन द लॉ स्कूल आई ट्राइड गिविंग interviews to many coaching institutions लास्ट ईयर में ही, 4th ईयर 5th ईयर में, बिकॉज आई वॉज टीचिंग पार्ट टाइम करके, कुछ ना कुछ करके। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12th स्टैंडर्ड। तो मुझे लगा कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लॉ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ ना कुछ करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि लॉ में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, जब वहाँ कार पे बैठे बैठे मुझे उनका कॉल आया था फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, आई वुड नॉट नेम दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब। आई सेड की सिचुएशन हैज़ चेंज्ड एंड नाउ आई एम वर्किंग फुल टाइम, तो मैं आपकी फुल टाइम जॉब भी कैसे कर सकती हूँ। और जब मैंने अप्लाई किया था तब तो मेरे पास डिग्री भी नहीं थी। आई विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो, अ न्यू व्लॉग probably. Bye for now.